Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Today we will do the revision for your term 1 exams, and for that we are going to solve one sample paper. And the first question of this sample paper is what is the molality of pure water? So finding the molality of pure water, first of all we should know the molecular mass of water, that is 18 gram per mole. Similarly, let the density of the solution be equal to water be equal to 1 kg per liter, and the volume, let the volume of the solution be 1 liter. Okay, then the mass of water would be, mass of water will be, we know that mass is equal to density into volume. So here density is 1 and volume is also 1. Okay, then the weight will be equal to 1 kg. 1 kg means 1000 gram. Okay ji, and then to find the number of moles, we know that number of moles is equal to weight divided by its molecular mass. Here the weight is 1000 gram and the molecular mass is 18 gram per mole. When we divide it, you will get 55.55 mole. Find, this is the number of moles of water. Then you will find the molality. We know that molality is a number of moles of solute divided by weight of solvent. Here the weight of solvent is taken as 1 kg. Therefore when we divide it by 1, you will get 55.55 molar solution. Means this is the molality of pure water. So answer is first option. And then the second question which is flashing on your screen, it is, if alpha is the degree of dissociation for the sodium chloride, then the want of factor used for the calculating the molecular mass will be equal to, here sodium sulfate will be dissociated into 2 Na positive and 1 sulfate ions, like this. Okay, let the concentration of sodium sulfate, initially it is 1, then the concentration of sodium and sulfate ion would be 0 0. Let the number of let alpha be the degree of dissociation for the case of sodium sulfate, then it would be equal to 2 alpha, and sulfate ion would be equal to alpha. Then how much sodium sulfate will be left? It will be 1 minus alpha. नाउ इन सभी को हमने ऐड कर देना है, 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा. You will get out the number of moles of particles, that will be equal to 1 plus 2 alpha. Now want of factor is equal to number of molecules after dissociation divided by total number of particles after dissociation left and divided by total number of particles taken. When you divide it by 1, you will get want of factor would be 1 plus 2 alpha. So answer will be C option. Fine. Now question number 3 is, low concentration of oxygen in blood of people living at high altitude. It is due to the low atmospheric pressure. Very easy question based on the Henry's law. Now the next question number is 4. Maximum amount of solid solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent does not depend upon. Dear students, it do not depend upon the pressure, because pressure has insignificant effect on the solubility of a liquid of a solid in a liquid, as solids are इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होने के कारण प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे. This is question number 5, that is quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from aluminium oxide. So here first of all we will write how aluminium change into aluminium ions. It will dissociate to 2Al3 positive ions and 3 oxide ions here. Now from the given equation, it is concluded that the 2Al3 positive ions will require 6 electrons to reduce it. Okay, to change it into the aluminium. Therefore 6 farad is required to reduce 2 mole of aluminium. And what you are asked here, 1 mole of aluminium. So therefore 1 mole of aluminium will be reduced by कितने में हो जाएगा, 3F में. ठीक है, तो यहाँ पे 3F क्वांटिटी ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड. फाइन. सो आगे बच्चे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर
weak acid is 100 times less than that of infinite dilution, then the degree of dissociation will be equal to here. So बच्चे हमें पता है यहाँ पे concentration आपको दी हुई है 0.1 molar, fine, and we know that alpha is equal to lambda mc divided by lambda m naught, where the usual the symbols have their usual meaning, means lambda mc यहाँ पे क्या होता है molar conductivity at c concentration, and lambda m infinite क्या होता है molar conductivity at infinite dilution. ठीक है, according to question here क्या दिया हुआ आपको, लैम्डा एम सी की वैल्यू जो है वो लैम्डा एम इनफाइनाइट से 100 टाइम्स क्या दे दी है, लेस दे दी है. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जब आप फार्मूला में पुट करोगे, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट डिवाइड बाय 100 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये दोनों कट जाएंगे. ठीक है, तो रह क्या गया बच्चे 1/100, देयरफॉर इट इज 0.01, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपकी सी आ रही है. ठीक है, आगे बच्चे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. बच्चे अगर आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो वहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसमें ऐसे कुछ हेक्सागन सी बनी होती हैं. ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना इसको अपनी बुक के ऊपर. और बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन जो है वो एक लेयर में 3 एटम्स के साथ जुड़ता है, मतलब 3 बॉन्ड बनाता है. एक इसका जो इलेक्ट्रॉन है फ्री होता है. ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरी शीट के साथ कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी नेचर होती है और इसकी गुड कंडक्टिविटी भी इसी की वजह से ही है. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फाइन, ऑप्शन नंबर बी. आगे बच्चे कंडक्टेंस, यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कर लीजिए. स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिपेंड अपॉन दी, ये बच्चे डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, किसके ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये है इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, आपको पता होगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट बच्चे क्या होते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी नो दैट कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर और टाइम होता है सेकंड, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ये वाले यूनिट बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के भी होते हैं, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें भी किया था कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के ही इक्वल होते हैं, मतलब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है जिसके यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होते हैं, वो आएगा जीरो ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 12, ये आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दी रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. यहाँ पे रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁴. ये बच्चे किसी को याद नहीं रहता, याद आपने क्या रखना है, यूनिट. ठीक है, यूनिट आपने याद रखने हैं. यूनिट यहाँ पे ये है सेकंड ऑर्डर के. ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा. ओके, नेक्स्ट 13 है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय, ये बच्चे डिटरमिन्ड बाय स्लो स्टेप. दिस इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप. स्लो स्टेप इज ऑलवेज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, इसे बच्चे हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट्स. ठीक है, दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट्स. आगे क्वेश्चन है बच्चे, एमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट इन मिल्क दैट मेक इट स्टेबल. ये बच्चे कैसीन होती है, कैसीन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन हेयर. ठीक है, लैक्टोस जो होता है ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना. कैसीन क्या है, ये प्रोटीन होते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स आर दी एमल्सिफाइंग एजेंट्स इन दी मिल्क. नेक्स्ट इज क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज लिक्विड डिस्पर्स इन गैस. ओके, आगे है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये बच्चे 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके जी, आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज और डज नॉट मैच विद द मेटल. बच्चे कॉपर की ओर जो है मेलाचाइट होती है. ठीक है, एल्युमिनियम की बॉक्साइट है, आयरन की हेमेटाइट होती है, लेकिन जिंक की ओर यहाँ पे सिट्राइट नहीं है, बिकॉज सिट्राइट बच्चे क्या होता है, आयरन कार्बोनेट. ठीक है, FeSCO3, मतलब ये आयरन की ही और यहाँ पे होगी. ठीक है, मेलाचाइट का फार्मूला क्या होता है, मेलाचाइट होता है बच्चे Cu2O3 डॉट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ट्वाइस OH ट्वाइस. ठीक है, एल्युमिनियम आपको पता होगा Al2
O3 बॉक्साइड जो है Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे होते हैं। हेमेटाइट का क्या था Fe2O3, ठीक है, ये होती है हेमेटाइट। फाइन। आगे बच्चे नेक्स्ट है ड्यूरिंग रोस्टिंग जिंक सल्फाइड इज चेंज टू। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट। तो बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन से जैसे हीट होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, इसका मतलब ये जिंक में चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन PCl5। बच्चों PCl5 में सेंट्रल एटम यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 एटॉमिक नंबर होने के कारण। क्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो यहाँ पे 4 हमने बना दिए, एक ये बना दिया, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 2 3 4 5, ये नहीं आना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, एक S में यूज हो गया, 3 जो है वो P में यूज हो जाएंगे, एक बच्चे D ऑर्बिटल यूज करेगा, तो बन गई sp3d, ठीक है। sp3d मतलब कि B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बच्चे अमोनिया की शेप आप सभी को पता होगा, ये पिरामिडल शेप होती है, ठीक है। तो P ब्लॉक का ये वेरी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटॉन एफिनिटी भी बच्चे इसकी ही ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया की। ओके, आगे बच्चे नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा है, एलिमेंट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मेटल पूछी होती फिर एल्यूमिनियम आना था, ठीक है। आगे बच्चे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। कौन सा बेसिक ऑक्साइड होता है बच्चे, याद रखना मेरी बात, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है सेंट्रल एटम की उतनी एसिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो इसकी +4 आएगी, इसकी आएगी बच्चे +3, जो बिस्मथ है ये इसकी आएगी बच्चे +3, और एल्यूमिनियम वाले केस में भी +3 ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात होगी कि SeO ट्वाइस, ये तो एसिडिक नेचर का हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट है अगर गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों की अब सेम है, ठीक है। तो अब बेसिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज करता है विद द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम यहाँ पे बिस्मथ का सबसे ज्यादा होगा, तो ये बेसिक ऑक्साइड मोस्ट होगा, ठीक है। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे होगा कौन, बिस्मथ ऑक्साइड। और जो एंटीमनी और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं ये बच्चे एम्फोटेरिक बिहेवियर के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर। ओके, आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर ऑल दी बॉन्ड नॉट इक्वल। तो बच्चे यहाँ पे जो ClF3 है इसकी शेप T शेप होती है लाइक दिस, ठीक है। इसमें लोन पेयर आते हैं और ये T शेप होती है, इसमें बॉन्ड सारे फिर इक्वलेंट नहीं रहते, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं बच्चे, विच वन विल फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी सेंट्रल एटम। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं सभी की, तो मैं बना देता हूं यहाँ पे Cl का आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन ने एक तो नेगेटिव चार्ज ऐसे ले लेना है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, 2 बन जाएंगे बच्चे ऑक्सीजन, इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर आया, ठीक है। SF की आप ऐसे ही बनाओगे तो SF में 6 होते हैं, 4 यूज हो गए। सल्फर के केस में बच्चे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के केस में, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे क्या 4 बॉन्ड बना देंगे, इसका मतलब 2 यहाँ पे ऐसे लोन पेयर बचेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसका मतलब इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। जीनॉन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 यूज हो गए, 4 यूज होने के बाद बच्चे इसमें भी 2 बचे और 2 इसमें लोन पेयर आएंगे, ठीक है। अब बारी आती है I3 1 नेगेटिव की, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो I3 में आपको पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो एक आ गया 7 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बच्चे I1 नेगेटिव होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज इस आयोडीन के, ऐसे ही बच्चे ये वाली आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसने एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड इसने बना दिया, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो इसमें आए 3 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इसका यही आंसर जो है D ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 है विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें बच्चे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम नहीं शो करता, ठीक है। आयरन जो है ये Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव बना देता है। वनेडियम की तो बच्चे 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव सारी बन जाती हैं, ठीक है। मरकरी की 0,
उसके बाद 2 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी इसमें बच्चे ऑस्मियम की ही आएगी, ठीक है, किसकी, ऑस्मियम की, ओके। आगे 29th है, इसमें हमने बताना है कि डायमैग्नेटिक नेचर किसकी है। डियर स्टूडेंट्स 3D9 सिस्टम है, ये बन गया कॉपर का, कैडमियम का बनेगा बच्चे 4D10 सिस्टम, ठीक है, और निकल का बनेगा 3D8 सिस्टम, और टाइटेनियम का बच्चे बनेगा यहाँ पे 3D1 सिस्टम। तो इसमें एक कैडमियम ही है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डी के फील्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। बाकी पे लोन पेयर आएंगे, ये सारे के सारे मतलब सिंगली फील्ड आएंगे, सॉरी सिंगली फील्ड होने के कारण ये सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। आगे बच्चे कलरलेस कौन शो करेगा, कलरलेस इसमें शो करना है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ने, ठीक है, किसने, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 होगा, तो ये होता है 3D1 4s2, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D0 सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। 3D0 होने के कारण यही होगा बच्चे कलरलेस। बाकी के केस में, सभी के केस में क्या है, डी ट्रांजिशन जो है पॉसिबल होगी, इसके केस में डी ट्रांजिशन होनी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नॉट ए क्वाइनेज मेटल। बच्चे क्वाइनेज मेटल कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर ये क्वाइनेज मेटल है, ठीक है, इनके कॉइन बनते हैं, और जिंक जो है ये नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक के इसमें कितना होता है बच्चे, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है मैक्सिमम कितनी आ गई, पहले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, इसमें होता है n-1, डी कितना आता है बच्चे, D10, और ns कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें s इलेक्ट्रॉन ही जो है वो निकलते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 33 है, ये ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म है बच्चे। पैरामैग्नेटिज्म इसमें आप अगर थर्ड ऑप्शन की तरफ जाओ तो इसका एटॉमिक नंबर 29 कॉपर का होता है, ये 3D9 सिस्टम है, 3D8 होता है, कोबाल्ट 3D7, और मैग्नीज है बच्चे 3D5, ठीक है, तो 3D5, ओके। तो बच्चों इसमें आप सभी में देख सकते हो कि जो कॉपर का केस है इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अनपेड होगा, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म इसमें कम आएगा। दूसरे के केस में ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कम होते जा रहे हैं, तो इसमें 5 तक जो है मैक्सिमम जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिज्म भी सी ऑप्शन ही आएगी, ठीक है। हेक्साडेंटेड लिगेंड बच्चे EDTA होता है, ठीक है, कौन सा, EDTA, ये है डाइडेंटेड, याद रखना, ठीक है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, ठीक है, और इसकी डेंटिसिटी होती है बच्चों डाइईन की, इसकी होती है 3, ठीक है। लास्ट है बच्चे, इसमें ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, ओके जी। सो ये था बच्चे आपका सैम्पल पेपर, प्रेपरेशन है आपकी करवा रहे हैं, ठीक है, टर्म 1 के पेपर्स की, तो इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चे।